Hello everyone, welcome you back in this video, and today we are going to learn about how to write the equation of motion for that body which is thrown vertically upward and which drops vertically downward. So as previously we have discussed about this equation of uniform accelerated motion which was along straight path on ground. So these were written as v equal to u plus of 80, s equal to ut plus of half 80 square, and v square is equal to u square plus of 2s. Now over here that motion under gravity. So this motion under gravity we are taking it is when body is going to fall. So it is for freely fall. In So that definitely it means in downward, and second it is going vertically upward. So it is only along the straight path, not on a curved path we are taking it. So vertically upward. Okay, so now one thing that you will notice, when any ball is going to drop downward, so will its velocity increases or decreases? Okay, so we are known over there when anything is coming down, so its velocity increases. Okay, so if velocity increases with the time, we said that there is the acceleration. What this acceleration it is produced because it is in the free fall condition, so the acceleration produced in the body it is due to the gravity. Okay, so therefore we are going to call it is as acceleration due to gravity, and this acceleration due to gravity it is taken as g. Okay, so here we will say that जो हमारे पास straight path था along this ground, that time we were taking this acceleration, it was a. Now over here for freely fall, this acceleration will be equal to g. Okay, and this g is equal to 9.8 meter per second ka square. So this acceleration will be taken as positive. It is positive. Why it is positive? Because in freely fall that velocity is going to increase, so therefore that it is accelerated motion, and therefore this acceleration will be positive. Okay, so then how to write this equation of motion? So therefore this first equation of motion it will become v is equal to u plus of so in place of a we have to write g for freely fall, then it will become gt, and second equation will become over there as equal to ut plus of this half gt square, and the third equation will be there, it is v square is equal to u square plus of 2gs. Okay, this is that equation of motion for freely fall of the body. And when we are throwing any body upward, so we have noticed over there, for example, now I'm going to project it upward, vertically upward. Okay, so we are noticing this thing that the velocity of the body decreases continuously. ठीक है, तो जो बॉडी है वेलोसिटी की वो डिक्रीज करती है. वाई इट डिक्रीज इज ड्यू टू दैट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सो देयर फोर वी विल से ओवर देयर कि वेलोसिटी जब डिक्रीज करती है विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी रिटार्डेड मोशन. तो रिटार्डेड मोशन है, तो रिटार्डेड मोशन में तो एक्सेलरेशन माइनस होती थी. ओके, सो दैट मीन्स हेयर वी विल से कि जो एक्सेलरेशन स्ट्रेट पाथ पे ए लिखी जाती थी, तो वर्टिकली अपवर्ड व्हेन यू विल थ्रो द बॉडी देन इट विल बिकम माइनस ऑफ जी. ठीक है, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. वाई दिस इज नेगेटिव? क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है जब बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है. सो देन we will have it is that minus g value is 9.8 meter per second ka square. Okay, so g is that acceleration which is produced by that gravity. Okay, so it is acceleration due to gravity. Now how do we write this equation? So therefore for vertically upward when the body is going, so first equation will become v equal to u minus of gt will come. ए की वैल्यू माइनस जी रखनी है, तो इसलिए माइनस ऑफ जी टी. सेकेंड इक्वेशन विल बिकम एस इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी का स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन विल बी देयर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर minus of 2gs. Okay, so thus these are the equations of motion that we need to use. Okay, now while we are going to solve the numerical which is based on that freely fall, and
and that when the body is going to be vertically upward. So we need to remember this point. Okay, so first thing, that this initial velocity, when to take it a 0. So this is when the body is going to drop, when body drops, ठीक है. और इधर दैट वी विल से व्हेन द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है, जैसे हमें बता दिया गया कि अ बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम अ हाइट. ठीक है, तो इसलिए ड्रॉप्स हो रहे, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया वहाँ पर, दिस इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन टू बी 0. एंड सेकेंड केस ओवर देयर, दिस इज इन ड्रॉपिंग केस, जब इसको ड्रॉप किया जा रहा है. नाउ ओवर देयर व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट अपवर्ड, सो वी आर फाइंडिंग कि जैसे जैसे बॉडी अपवर्ड जाती है उसकी एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0. फाइनल वेलोसिटी 0 कब हो जाती है, सो दैट वी विल से इट इज एट मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, so thus we will have this initial velocity 0 at the moment when body drops, and final velocity will be 0 when it is at maximum height. Okay, now if you have to find out कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की, हाउ मच इज दैट हाइट विच इट हैज़ अटेन्ड. तो ये वर्टिकली अपवर्ड इसको प्रोजेक्ट किया है, जब ये हाइट अटेन करेगा तो उसको ऊपर की तरफ हमने फेंका. ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन दिस वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी हाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, और there you will get u square upon में 2g is equal to that s. okay, so this will be that formula. s means वो height. ठीक है, maximum height. So this formula that you can use to calculate this maximum height. So at maximum height final velocity 0, तो इसलिए third equation में use किया and we get this maximum height formula. Okay, and over here we can take this one as what will be the velocity attained when the body is going to touch the ground. जैसे हमने क्या किया, एक बॉडी को ड्रॉप किया और ये क्या करती है, ग्राउंड को ऑलमोस्ट टच करने वाली है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. तो इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ली गई, 0 ली गई. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यू हैव टू टेक आउट. लेकिन ये क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, तो इसलिए डाउनवर्ड मोशन है. डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशंस ये वाली हैं. ठीक है, प्लस वाली. ठीक है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर. तो थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर दो, सो देन यू विल गेट दिस, v विल बी अंडर टॉप 2gs. एस मतलब कि वो डिस्टेंस जिससे वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है. ठीक है, सो दिस इज दैट फार्मूला विच यू कैन यूज टू कैलकुलेट दिस फाइनल वेलोसिटी while it is going to fall. Okay, so it is near the ground. Okay, let us to do over here one of the numerical which is based on it. So the question is, a ball thrown vertically upward with the speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है. और आपको बताया गया है कि टावर के टॉप से जो स्पीड है 19.6, उस स्पीड से अपवर्ड बॉल को थ्रो किया गया और वो ग्राउंड को 6 सेकेंड के अंदर टच कर जाती है. ठीक है, सो लेट अस टू ड्रॉ दिस वन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. दिस वाज द ग्राउंड हियर, दिस इज द टावर, एंड लेट अस सपोज दैट द हाइट ऑफ दिस टावर इट इज गोइंग टू बी h, टावर की हाइट. नाउ फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड. ठीक है, जैसे ही उसको अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है, सो इट अटेन्स इज मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा. तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए टावर और इस पॉइंट के बीच में लेट अस टू कंसीडर इट इज़ द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट नाउ इट रिटर्न्स बैक, तो ये दोबारा से वापस आती है एंड देन इट टचेस द ग्राउंड. ठीक है, तो ये ग्राउंड को टच करती है. नाउ ओवरऑल इट इज सेड दैट
टोटल टाइम टेकन जब इसको थ्रो किया गया और जब ये ग्राउंड को टच करता है तो ये टोटल टाइम जो है वो 6 सेकेंड का है। टोटल टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड। एंड वाइल दैट इनिशियली इस टावर से किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, उसको 19.6 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है। सो दे आर आस्किंग टू अस यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज़ द हाइट ऑफ दिस टावर। तो टावर की हाइट कितनी है। ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक ओवर है। जो मेरे पास ये टॉप ऑफ द टावर से जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस वन। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो टॉप ऑफ द टावर के ऊपर क्या थी, 19.6। ठीक है। और जैसे ही ये अपवर्ड जाती है तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जा करके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर फर्स्ट पार्ट। So by the two method I will solve this one. So for first part we are having this is that final velocity is 0, initial velocity is 19.6, and I'm going to find out the time, how much time it takes to go up. So that using this first equation of that uniform accelerated motion, it is u minus of gt I will take. Why it is negative? Because it is against of gravity, this motion is there. So therefore u v is 0, and we will get this u is equal to gt then. ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, u बाई जी हो जाएगा, दैट इट इज ओवर हेयर 19.6 अपॉन में 9.8, एंड विच इन टर्न इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका मतलब कितना टाइम लिया उसने इस टावर से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। सो इट इज़ ऑफ 2 सेकेंड। नो रिमेंबर ओवर देयर, जितना टाइम वो ऊपर जाने के लिए लेती है उतना ही टाइम वहाँ तक वापस आने के लिए भी लेती है। ओके, सो देन मेक दिस योर सेकेंड पार्ट ओवर है। ये सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू दैट सेम पोजिशन ऑफ दैट टावर टॉप। ओके, तो यहाँ तक वापस आने के लिए वो दोबारा से कितना ले रहा है, इट इज़ 2 सेकेंड। ठीक है। तो 2 सेकेंड मेक इट योर सेकेंड पार्ट। ठीक है। तो देयर फॉर सेकेंड पार्ट अगेन हाउ मच इज द टाइम टेकन। सो एज टाइम इज टेकन टू गो अप, सो सेम टाइम इज टेकन टू कम बैक। सो देयर फॉर टाइम टेकन इन सेकेंड पार्ट इट इज ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में भी कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड का। सेकेंड पार्ट में भी कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड का। ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लिया था उसने टू कम बैक ऑन द ग्राउंड, इट वॉज ऑफ 6 सेकेंड। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 4 सेकेंड तो उसने यहीं तक ख़त्म कर लिए। सो इन विच टाइम इट इज़ गोइंग टू कवर दिस। तो इस टावर को ये कितनी देर में कवर करने वाला है। सो दैट मीन्स इट इज़ नाउ इन ओनली 2 सेकेंड। सो मेक इट योर थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये क्या करता है, उस टावर को कवर करता है। ओके, सो देन फॉर थर्ड पार्ट दैट वी आर हैविंग दिस दैट ऑफ टाइम इज, थर्ड पार्ट को ये कवर करता है 2 सेकेंड के अंदर। ठीक है। वाई इट इज़ 2 सेकेंड, सो ऑलरेडी आई सेड यहीं तक मतलब कि टावर से उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, और टावर उसी सेम पोजीशन पर आने के लिए उसने टोटल कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड। 2 सेकेंड जाने के लिए, 2 वापस आने के लिए। ठीक है। और जो टोटल टाइम था ग्राउंड तक जाने का वो 6 सेकेंड का। तो इसलिए जो ये टावर को कितने टाइम में पूरा करता है, 2 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है। सो ओवर here time is given to us, and next thing is there that it is how much is the velocity at this point। जब ये वापस आता है तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी velocity क्या होगी। now what you will suppose, जब ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। जब ये उस हाइट से नीचे की तरफ आता है उस सेम पोजीशन ऑन द टावर टॉप, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ही बन जाती है जितनी पहले थी। इसका मतलब यहाँ पर कितनी है, 19.6 है। तो इसलिए थर्ड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन तो जी होगी। So using that s equal to ut, now it is going to be the downward motion, then it is ut plus of half gt square. This will come over there. So s is that height of the tower। ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टावर की हाइट के बराबर। u is over there that 19.6 into how much time it takes to cover this tower, it is 2 second plus 1/2 this 9.8
into t का square which is 4, and this will cancel this one. Okay, so that's I will get over here this answer. ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये, it is going to be 58.8 मीटर. दिस इज दैट हाइट ऑफ द टावर. ये मेरे पास उस टावर की हाइट है. नाउ लेट अस लुक ओवर हेयर वंस अगेन दैट व्हाट आई डिड. ये जो टोटल पाथ था मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट में ये टावर से मैक्सिमम हाइट तक जाती है, सेकंड पार्ट में वो मैक्सिमम हाइट से वापस टावर तक आती है, और थर्ड पार्ट में वो उस ग्राउंड को टच करती है. ठीक है, तो इसलिए टावर से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसने 2 सेकंड लिए, वापस आने के लिए भी उतना ही टाइम लिया 2 सेकंड का, और जो उस टॉप से ग्राउंड को टच करने के लिए अगेन इट टेक्स 2 सेकंड. ठीक है, सो देयरफॉर इन 2 सेकंड हाउ मच इज दैट डिस्टेंस कवर्ड, सो वी हैव कैलकुलेटेड इट. सो दिस इज इक्वल टू दैट हाइट ऑफ द टावर. नाउ लेट अस टू टेक ओवर हियर द सेकंड मेथड. ओके, फॉर दिस सेकेंड मैथड अगेन दैट आई हैव सपोज ये टावर है, टावर के टॉप से उसको इनिशियली थ्रो किया गया, तो ये 19.6 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो अप किया गया था. ठीक है, सो इट गोज टू द मैक्सिमम हाइट एंड देन कम्स बैक टू द सेम पोजिशन. तो उस सेम पोजिशन तक ये वापस आता है. सो वी विल फाइंड दैट हाउ मच इज द टोटल दिस डिस्प्लेसमेंट. इसकी इस पूरे राउंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से वापस यहाँ तक आने के लिए. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0. नाउ देयर आफ्टर इट गोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन. तो ये फिर उसके बाद क्या करता है, डाउनवर्ड, अपनी पोजीशन से डाउनवर्ड मूव कर जाता है. ठीक है, तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट अब क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी. ठीक है, तो अपवर्ड को क्या लेनी थी, पहले अपने पॉजिटिव लेनी थी. फिर ये क्या हो जाता है, वापस आ जाता है. जब सेम पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन फिर ये उस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, तो इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव. तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसकी -h के बराबर हो जाएगी. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर, हाउ मच इज द टाइम टोटल टेकन बाय हिम टू रीच द ग्राउंड. तो टोटल टाइम उसने ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लिया, दिस वॉज ऑफ 6 सेकेंड. ओके, एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज इनिशियली थ्रोन अप. तो ये 19.6 मीटर पर सेकेंड विद दिस वेलोसिटी इट वाज थ्रोन अप. तो जब इसको थ्रोन अप किया गया था, सो दिस वाज द मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी. ओके, सो देयरफॉर use this equation because we have to find out this h. Therefore use s is equal to ut minus of half gt square. ओके, नेगेटिव विल कम क्योंकि इनिशियली उसको क्या किया था, अपवर्ड में थ्रो किया गया था. ठीक है, तो अपवर्ड में नेगेटिव ग्रेविटी आती है. सो देन दिस इज माइनस ऑफ एच एंड इट इज u इज ऑफ 19.6 इंटू 6 minus of 1/2 into 9.8 into t square is there which is 36, and in return it is 18, and thus we got it is going to be that of what, remember. Okay, so over here we will get this one as total height on solving this one again, it will be 58.8 meter. Okay, so this is the second method by which you can solve. Okay, so what we did over here, we have seen that how much is the total displacement. So this total displacement, it becomes negative because it has crossed its initial position as well. So therefore minus of h, and total time taken is of 6 seconds, initially thrown upward with 19.6 meter. So using this equation we have calculated this height of the tower. Okay, so thanks for watching this video. Stay tuned.